Hello, everybody. Welcome to a new feature of IndieCast. Today, I am here with my friend Siddharth, who is an entrepreneur, and he has been following the price related disruptions and commodity related disruptions in West Asia for a while now because they have been happening since around the October 7th attacks in 2023. But naturally, after the launch of Operation Epic Fury, they have intensified, especially after the US strikes in Iran. Iran has reportedly blocked the Strait of Hormuz, which is having its own impact on prices of various commodities. So, because Siddharth has been following this issue so closely, we will get his thoughts on this. Siddharth is also a travel vlogger and he's traveled extensively across Europe and West Asia. So, we'll get his thoughts on this whole exercise about the operation, politics, economics of the whole thing. So, thank you for joining us, Siddharth. Thank you, Raj, for having me. Yeah. Very nice to be here. Excuse me. Go on, please. So, I've been following. I am a trader in non-ferrous commodities. So, I have to buy a lot of material. X works from yards itself in USA, Europe. So makes me that makes it a must for me to follow commodities, exchange rates, exchange prices, world economics, geopolitics, and because I do end-to-end supply chain, so I need to take care of the logistics as well. So that makes it very necessary for me to follow everything. So that's what I have been doing since past 2 weeks very extensively. I am always on my phone checking what the exchange rate is, how the prices of crude and commodities change, what is the new update, if they attacked something or not. So it's been a hell of a journey since 27th of Feb. I think Right. they killed Khomeini, the operation Yeah, 28th of Feb it 28th of started. Feb. Yeah. So it's been hell of a journey since then. What was the instant impact? Like, what was the instant impact on the market, especially like crude and everything? Yes, I remember that extensively because I did some trading on the 1st of March itself. Okay. So as soon as they killed Khomeini, that day I think dollar to rupee exchange rate was around 91. Okay. So as soon as they killed Khomeini, they killed him at night. Hmm. Information came at Yeah. night Yeah. कि भाई ये मर गया है. Huh. और अगले दिन सुबह उठते ही exchange rate was around 91.7. And then we heard the news of Iran attacking back at all these, Middle Gulf Eastern Gulf countries. Yeah. countries. Aramco was hit in Saudi. Yeah. Dubai, Bahrain, Qatar, Yeah. everybody was hit, and One within of the Shahid drones landed close to the Burj Khalifa or something like that. yes, in Palm Jumeirah as Yeah. well. Yeah. So the immediate impact was the crude and exchange rate. The very next day, by the evening after the Aramco it came in, the exchange rate went up till 92 plus. Yeah. So it came from 91 to 91.7 to 92 plus within a span of 2 days. And same with crude, because crude crude rise also was very exponential, and that is also a reason कि exchange rate बढ़ गया, because crude बढ़ेगा तो dollar strong होगा, rupee weak होगा, because Right. we are Right. import dependent. For sure. So that was the first immediate हाँ impact. यार इसमें सिद्धार्थ आई वांट टू पिक योर ब्रेन ऑन समथिंग जैसे वेस्ट एशिया पिछले 2-3 साल से स्टेबल नहीं रहा है in June 2025 we had the 12-day war again between Iran and the Israelis. In October 7, 2023 there was that attack on Israel by the Hamas, and then that followed a lot of conflict and disruptions around West Asia. So, and prior to all that, this is all happening in the background of a 4 year long Russia Ukraine conflict, which is also an energy rich region Yes. from where a large part of the world imports. So, price differences क्या रहे हैं? And does this have something to do with like a sustained price rise? Because I feel like procurement of different kind of energy sources has become more difficult generally, especially since these conflicts started. India पे आरोप भी लगा जाता है that we financed Russia's campaign against Yes. Ukraine. तो उसके कारण आई जस्ट वांट टू पिक योर ब्रेन ऑन दिस होल थिंग कि चलो 28 फेब को जो हुआ वो हुआ बट उससे पहले भी एनवायरनमेंट हैज नॉट बीन स्टेबल. So just bring us to speed with that. I think उससे पहले से the impact of this conflict, impact of any conflict is very immediate. जैसे फॉर एग्जांपल जब रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था, तब खबर आ रही थी रशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ निकल.
Yeah. तो खबर आ रही थी निकल बढ़ जाएगा, वो बढ़ा भी 1-2 महीने, उस वक्त क्रूड भी बढ़ा, उस वक्त फर्टिलाइजर सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हुई, बट वो इमीडिएट होता है आफ्टर इकोनॉमी में इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट होता है, No. तो 1 महीने में सब Adam Smith. एडम स्मिथ 1 महीने में सब ठीक हो जाता है। तो जो ईरान और इसराइल और हमस का अटैक, जो भी मिडल ईस्ट में जो भी टेंशन्स है, उसका इम्पैक्ट इतना सिग्निफिकेंट नहीं था पिछले 2-3 सालों में जितना इस बारी, बिकॉज इस बारी एक बहुत डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, बहुत सारी चीज़ें, स्टेट ऑफ हॉर्मूज पहली बार बंद होगा विच इज़ अ ह्यूज थिंग, Yeah. अरामको बीइंग हिट, Hmm. बहरीन ने अपना कतर ने अपना ऑयल नेचुरल गैस बंद कर दिया, ये सब चीज़ें पहले कभी नहीं हुई है। और पहली बार ये सारे गल्फ अरब सुन्नी स्टेट्स, जो गल्फ अरब मोनार्कीज हैं, जो रिलेटिवली बहुत स्टेबल देश माने जाते हैं, इंडिया में भी कोई मान लो कोई बड़ा ज़मीन वमीन की डील करते हैं लोग, तो उनसे पूछा जाता है कि भाई आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो हमेशा लोग ये मानते हैं कि दुबई, अबू धाबी। तो it has generally been perceived as a very stable destination for investment, and Gulf Arab states have very strongly promoted that perception. So this is the first time they have been dragged into conflict, और I think उससे ज़्यादा disruptions और बढ़े होंगे, so that's वो पहली बार ऐसा हुआ है कि दुबई को लगता था कि वी आर आइसोलेटेड, right. नोबडी कैन टच अस, बिकॉज हर चीज़ वर्ल्ड इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सेंटर दुबई है, बिकॉज इट्स इन द मिडल ऑफ द वर्ल्ड लिटरली, वेस्ट और ईस्ट को कनेक्ट करने वाला, साउथ और नॉर्थ को कनेक्ट करने वाला बहुत बड़ा पॉइंट है वो। उनको लगता था हमसे कोई बिगाड़ नहीं सकता, और अब तक टू बी फेयर टू देम, अब तक वो लोग स्टेबल भी रहे थे। स्टेबल रहे हैं। हाँ। पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब वही है, पिछले 3 साल में जितने भी डिस्ट्रप्शंस थे वो इतने मेजर नहीं थे जो इस बार ही हुए हैं, तो उसके कारण इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल प्राइसेस में बहुत इम्पैक्ट हुआ है। और दुबई जो लगता था उसको कि मैं आइसोलेटेड हूँ, वो अब अनफॉर्चुनेटली आइसोलेटेड नहीं है। Unfortunately, it has been pulled into the same conflict. Yes, unfortunately, and that signals, because that is a huge signal, because we don't have an international economic capital like Dubai anymore. People are scared, and they should be, because लोग जाते थे दुबई ये सोच के कि हमें कुछ नहीं हो सकता, हम पैसा कमाते रहेंगे, पर ऐसा नहीं है। दुबई में भी नुकसान सहना पड़ सकता है, और दुबई ने बहुत नुकसान इस बार सहा भी है। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं कल अपने लाइफ में पहली बार, बिकॉज आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट फॉरेन पॉलिसी, कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी पॉलिसी फॉर अ वाइल नाउ, तो कल मैंने अपनी लाइफ में पहली बार अपना पहला सबस्टैक आर्टिकल लिखा, जिसमें मैंने ये बात लिखी कि एक इनएडवर्टेंट मोमेंट में एक अमेरिकन सेनेटर से बात करते हुए एक दुबई के बिलियनर ने बोल दिया कि that he ended up saying something like कि you call us your friends and you dragged us into this conflict, क्योंकि दुबई के बिलियनियर्स के तो इतना स्किन इन द गेम है दुबई, if it stops being the investment destination that it is today, and it's genuinely unfortunate for the Gulf Arab states, क्योंकि उन्होंने Americans को बहुत दिया है, they have given them their land as military bases, they have supported them against their campaigns against the Iranians, because उनकी एक anxiety रहती है about the Iranians की the revolutionary export, they are scared of the revolution being exported to these monarchies, तो वो हमेशा बैक एंड पे इसराइल और अमेरिकन को सपोर्ट करते हैं डिस्पाइट बीइंग मुस्लिम्स। और ये बहुत इम्पैक्ट करने वाला है इनके रिलेशनशिप्स में, जो मेरा मानना है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट, बट आई ट्राई टू रीड कि दे ऑलवेज थॉट दैट अमेरिका वुड बी देयर सिक्योरिटी प्रोवाइडर, या बट दैट इज नॉट द केस। और कल ही फुजैरा पोर्ट में अटैक हुआ, हाँ, यूएई के फुजैरा वापस, पोर्ट में। हाँ। इट्स अ स्मॉल पोर्ट, बट यूएई में अटैक होना और हर जगह अटैक होना, जब अमेरिका कहता है कि हम आपको हमारी security guarantees में हो। है, तो ये अमेरिका और मिडिल ईस्ट के रिलेशनशिप्स में मेरे हिसाब से थॉल आने वाला है। हाँ, और स्पेशली मिडल ईस्ट में अगर हम एक्सक्लूसिवली अगर गल्फ अरब स्टेट्स को देखें, तो इन लोगों ने तो अपनी एग्जिस्टेंस ही स्ट्रेंथन करी है अमेरिकन सपोर्ट पे, और आप ऐसे देशों को आइसोलेट कर रहे हो, तो मतलब दिस इज अ मेजर लॉस टू द इंटरनेशनल ऑर्डर that Americans were benefiting from. Yes, exactly. And even Donald Trump was benefiting Yeah. of it. वो कौन सा नेता था जिसने उसको बोइंग एयरप्लेन गिफ्ट कर दिया था $400 मिलियन का? आई डोंट नो, किसी गल्फ के ही देश का था। देश के राजा ने गिफ्टेड ट्रम्प बोइंग, आई डोंट नो, इट वाज $400 मिलियन वर्थ while he was the president. So it's pretty crazy how things have turned out between USA and Middle East. Yeah, Americans ने with their unwavering support for Israel अपने
बाकी सारे एग्जिस्टिंग एलाइज को आइसोलेट कर दिया. अब यूरोपियंस जानते हैं अगर ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन गई तो रेफ्यूजी माइग्रेशन यूरोप में यूरोप होगी. में ही होगा, सब लोग और यूरोप ही जाने वाले हैं. टर्की हमेशा टाइट रोप वॉक करता है, एक तरफ से नेटो देश भी है, एक तरफ से मुस्लिम देश भी है. तो टर्की भी यूएस के साथ बहुत मामलों में एज ए नेटो कंट्री जुड़ा रहता है. नन ऑफ दीज पार्टनर्स वर कंसल्टेड. इंडिया इज इन अ वेरी अनकंफर्टेबल पोजिशन. Yes, it's very bad, and dollar is high, imports are Yeah. costly. There's a LPG shortage, एलपीजी क्राइसिस. LPG crisis, हाँ. fertilizer crisis, you name it. We are facing the brunt of it. Of course, बिल्कुल. we are managing, and we have a strong economic foundation, so it's okay. But we are facing the brunt of it. The whole एब्सोल्युटली. world is. एब्सोल्युटली. मेरे को धीरे धीरे ये लगने लगा है दैट दिस नॉन कंसल्टेटिव मिलिट्री स्ट्राइक. मैं इतना भी पीस लविंग नहीं हूँ. मुझे लगता है कभी कभी ये बहुत ईविल है दुनिया में, तो मिलिट्री स्ट्राइक कैन बी वारंटेड. बट व्हेन यू आर आइसोलेटिंग ऑल योर पार्टनर्स, द गल्फ अरब वर्ल्ड, द यूरोपियंस, द इंडियंस, we were in a very uncomfortable position when that Iranian frigate was sank off of our coast. Yes. And that did not look good on us. Although there is a good case to argue कि हमारी responsibility नहीं है to protect something in the international waters. But I'm pretty sure the External Affairs Ministry had a tough week that time. हाँ, और So कायदे से रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी नहीं, बट एक चीज़ है ना, फालतू में आपको कोई क्वेश्चन क्यों करे. यू हाँ. बीइंग क्वेश्चनड, यू बीइंग ड्रैग्ड इनटू समथिंग अननेसेसरीली, सो इट डेफिनेटली पुट्स यू इन एन अनकंफर्टेबल और आप पोजीशन. हमारे बैकग्राउंड में वॉर ला क्यों रहे हो? इफ द कॉन्फ्लिक्ट इज सेंटर्ड इन वेस्ट एशिया, व्हाई अटैक एन ईरानियन फ्रिगेट विच इज नॉट इवन एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन कॉम्बैट ऑपरेशंस? तो There's just one answer to it: American दादागिरी. हाँ, अमेरिकन इंपीरियलिज्म. They don't care about shit, and and they have nothing to care about, to be honest. They just do whatever they want, and there's an economic aspect to it as well, because we are talking. And that's why I wanted you to come and enlighten because us also. the theme of the this conversation is trade. Yeah. I think one of the reasons, the biggest reason, is American hard power. They have the hard power. This war again explains कि भाई eventually तो hard power की ही चलनी है दुनिया में. But their hard power is backed by their soft power in the form of their economy. उनके पास पैसा है, तो इनको किसी से डर नहीं लगता. अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो भी इनका फ़ायदा है, इनके पास ऑयल के रिजर्व्स है. एक्सचेंज रेट रुपी और यूरो दोनों वीक हो रहा है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इनका फ़ायदा है. हर चीज़ में इनका फ़ायदा ही फ़ायदा है. तो मतलब इनकी इकोनॉमिक जो डोमिनेंस इन द वर्ल्ड है, वो इनके मिलिट्री डोमिनेंस को बहुत और दिलासा देता है और बढ़ावा देता हाँ. है. और देख, इसमें तो आई फुल्ली एग्री विद यू. बट जैसे अब तक तो हम लोग बात कर रहे हैं ऑफ एसेट्स लाइक ऑयल एंड करेंसी विच कैन बी आर्ग्यूड दैट दे हैव सम सॉर्ट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू. बट इकोनॉमिक फ़ायदा एक तरह से अमेरिकन कंपनीज का भी है इन कॉन्फ्लिक्ट सस्टेनेंस. लॉकहीड मार्टिन्स Lockheed की Martins, स्टॉक्स yeah. बढ़ेंगे. A lot of the defense manufacturers who supply to various organs of the US Army. It's a very diverse organization, the US Army, the US Navy, the Marine Corps. They obviously procure from the private sector. तो कहीं ना कहीं से ये सिग्नल, जो लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में दुनिया भर में इन्वेस्ट करते हैं, दे विल ऑल्सो एंड अप इन्वेस्टिंग हेविली इन अमेरिकन कंपनीज. तो एक तरह से ऑयल रिजर्व्स और करेंसी को तो फ़ायदा है ही, बट जो नेटवर्क इफेक्ट है वो उनकी कंपनीज को भी जा रहा है. इंडस्ट्रियल पावर में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इन्हें. In fact, I listened to this expert. His name is Scott Horton. He has this beautiful episode on the Lex Friedman podcast, which is called "The Case Against the Military Industrial Complex." वो 10 घंटे का podcast episode है और मैं 3 बार देख चुका हूँ. Oh, I obviously take breaks in the middle, but it is a beautiful and a very hard power factual analysis on how much the military industrial complex has lobbied through think tanks, through senators, to push for war in West Asia. बार बार. तो जैसे I want to get your thoughts on this whole thing also. Like, and we can also talk about the ethics of profiting from war. You know. The ethics of profiting from war is a very good question, because I don't think in politics, there's this book called The Prince from that Italian Machiavelli, The Prince. Yeah. Says there are no ethics in politics. There is no morality at all in politics. So that's what we see in international politics as well. So Machiavelli is known as one of the founding fathers of this political philosophy called realism. So
we the world order is right now, you know, is a zero power sum game. So it's it's a very good way to, you know, अभी भी रियलिज्म ही चल रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और तो और रियलिज्म में कोई एथिक्स नहीं होती, इनको बस अपनी पावर से मतलब है। और पावर क्या होती है? इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। इंटरेस्ट ऑफ द नेशन क्या है? अमेरिका में जो इंडस्ट्रीज है वो पैसा कमाएगी, इसराइली लोग भी पैसा कमाएंगे, सो दैट्स द इंटरेस्ट। there's no other way you can look at it, you know. Those are my thoughts, of course. And इसमें मुझे एक चीज़ बहुत, मैं इसमें सॉरी टू डाइवर्ट, बट नहीं नहीं, प्लीज प्लीज। मैं इससे एक चीज़ बहुत अच्छे से पता चलती है कि आपके जोग्राफिकल लोकेशन, जियो पॉलिटिक्स का, दिस वॉर इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ इम्पोर्टेंट योर जोग्राफिकल लोकेशन इज। योर एंटायर क्वालिटी ऑफ लाइफ। Entire quality of life, and not just its impact on geopolitics, but the impact of geography on geoeconomics as well. या Because we always say that Afghanistan and Pakistan are very well located, so they are geopolitically very well located. They get lots of attention because of the geopolitics, because of their position. Afghanistan is in the Central Asia area, वो सबसे कनेक्ट होता है। पाकिस्तान भी अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, इंडिया, हर जगह से कनेक्ट होता है। पर जियो इकोनॉमिक्स काफ़ी टाइम से इग्नोर होता आता है। सब लोग जियो पॉलिटिक्स का बात करते रहते हैं, बट जियो इकोनॉमिक्स का इतना इम्पैक्ट है कि अगर आपके पास तेल के रिजर्व है तो आपकी इम्पोर्टेंस अपने आप बढ़ जाएगी, और कुछ भी बदल सकता है दुनिया में। आप अगर आप यू आर नॉट स्टेबल, द होल वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर कैन चेंज, या इट कैन शिफ्ट अगेंस्ट यू। इट शिफ्ट। सो ये मैंने एक बहुत चीज़ नोटिस करी इस कन्फ्लिक्ट से कि जियो इकोनॉमिक्स का कितना बड़ा रोल है, और अभी भी some things like geographical, you know, Yeah. positioning matters a lot. या इसमें तो सिद्धार्थ, आई ऑल्सो फील, जैसे पाकिस्तान की जोग्राफी की बात करी, तो पाकिस्तान अगर एक अपने आप को वेसल स्टेट नहीं बनने देता, ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद गल्फ स्टेट्स को डर लगा कि मुस्लिम वर्ल्ड में हमारी पोजीशन वीकन हो जाएगी, तो वी नीड मुस्लिम वर्ल्ड कंट्रीज टू बैक अस अ लिटिल बिट। तो इसीलिए आई थिंक किंग सऊदी के किंग्स ने मॉस्क बनवाए इस्लामाबाद में, जो बड़ा फेमस मॉस्क है, इसके टर्किश आर्किटेक्ट हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। एंड तो उसमें आई थिंक मुझे लगता है कि पाकिस्तान धीरे धीरे फॉर मनी अपना वेसलाइजेशन अलाउ करने लगा। अब सऊदी वेसल बन गया तो ऑटोमेटिकली अमेरिकन वेसल बन गया। तो उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो अपना सॉवरन पोटेंशियल था, एक तरफ आपके पास सेंट्रल एशिया का एक्सेस है, एक तरफ आपके पास अरेबियन सी का एक्सेस है, यू कुड हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट पॉइंट्स इन द वर्ल्ड if they did it well. It could have been a great investment destination for other countries. India के तो historical tension है, हम लोग तो दूरी बना के रखते, but they could have had much better economic potential than they do at the moment. And इसमें जैसे उन्होंने अपना geographical advantage to the fullest नहीं live किया, और उसका वो लोग नुकसान आज देख रहे हैं। वही दुबई ने करा है। दुबई ने Exactly. अपना एडवांटेज बहुत अच्छे से यूटिलाइज करा है। मिडल ईस्ट, ईरान में सैंक्शंस है, वो उससे करीबी देश है। इंडिया पाकिस्तान से करीब है, ऊपर यूरोप से करीब लगता है। तो Exactly. लोगों ने बहुत अच्छे से यूटिलाइज करा, बट दैट इज़ अ गुड पॉइंट, पाकिस्तान ने कभी अच्छे से यूटिलाइज नहीं करा। हाँ, they allowed themselves to become a vassal. अब किराए पे ले लो हमारा सब कुछ। They are facing the brunt of it. Their economy is in shambles, and it will never recover. That is my thought. It is never going to recover. It will always be in debt. Yeah, for sure. They have no other option. And they are also facing the brunt of this whole conflict in a very bad way. Yeah. So I was reading up, you know, on the, you know, notifications by these shipping companies, Maersk, MSC, Hapag, ये सब लोग अपना, जब भी conflict होता है, ये लोग अपना एक नोटिफिकेशन भेज देता है सब लोगों की, भाई हमारे ये नए रूल्स आए हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। सो बिल्कुल। ऑलमोस्ट ऑल द shipments to Pakistan are banned now. They are not taking shipments to Pakistan, except I think a couple of shipping lines opened up for the Karachi port, but that is also not the main port. The Right. main port is ग्वादर। Qasim. ओके, अच्छा। पोर्ट कासिम में ये लोग काफ़ी धंधा करते हैं, बट इन लोगों ने इस कॉन्फ्लिक्ट में भी बहुत नुकसान करा है। सो दैट आल्सो एक्सप्लेन्स हाउ ग्लोबलाइज्ड द वर्ल्ड ऑर्डर है। Yeah. एक जगह कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और उसका इम्पैक्ट हर जगह पड़ रहा है। अच्छा, पाकिस्तान बड़ी फनी सिचुएशन में फंस जाती है। जय एंड आई हैव डन एन एपिसोड ऑन द सऊदी पाकिस्तान सिक्योरिटी अरेंजमेंट, that Saudi and Pakistan back each other against any conflict. So it's almost like a NATO, like declaring war on one is like a war on the other.
To the Iranians, it was a signal कि आप एक nuclear power से भी लड़ रहे हो, पाकिस्तान से लड़ रहे हो by fighting the Saudis. And to the Indians, it was a signal कि you are fighting the Saudis by fighting Pakistanis. अब मैं ये सोचता हूँ कि एक तरफ आपने साउदीज के साथ डील कर ली, जो जो बैकग्राउंड में इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और एक तरफ आपको खमेनी की डेथ को भी कंडेम करना है. एक तरफ तो- उधर प्रोटेस्ट हो रहे हैं भाई खामेनी को क्यों मारा, और एक तरफ सऊदी के ऊपर वही खामेनी अटैक कर रहा है, उसका लड़का अटैक कर रहा है सऊदी के ऊपर. तो वो बहुत अपने आप को कहाँ फंसा देता है कभी समझ ही नहीं आता. मुझे लगता है लेकिन इसमें जितना अनकंफर्टेबल पाकिस्तान हुई है, ऑलमोस्ट उतना अनकंफर्टेबल हम भी हुए हैं, क्योंकि हमारे रिलेशंस इसराइल के साथ भी ठीक हुए हैं. प्रधानमंत्री कनेसेट गए हुए थे विद 2 days before the strike, and we are now trying to improve relations with Iran also. So we also have tied in, and we have great relations with the Gulf Arab states. एंड इसमें आई थिंक इंडिया ट्राइज अ लॉट टू वॉक अ डिप्लोमेटिक टाइट रोप, हाँ. but sometimes when the situation arises, I think they fail at it. I Yeah. think they did really well in the Ukraine-Russia war. Yeah. They continued buying oil from Russia. They continued talking to Zelensky. Yeah. हर मोदी फ़ोन करते रहता था उसको कि भाई हम लोग कुछ कर देंगे, हम लोग वी आर विद यू, वी सपोर्ट पीस एंड एफर्ट. बट इस बारी मेरे को उसका थोड़ा उल्टा दिखाया, बिकॉज फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम वी डिड नॉट say anything about Iran. We did not Yeah. even mention it. I We noticed in fact condemned their strikes on the Gulf, but we Yes. did not condemn the US-Israeli strike on on Iran. Iran. And that is to, और इसमें एक चीज़ ये नोटिस करनी चाहिए कि वी हैव ट्राइड टू इम्प्रूव रिलेशनशिप्स विद ईरान. लाइक वी हैव हैड अ कॉन्शियस एफर्ट कि भाई ईरान से रिलेशनशिप हम सुधारे. विद चाबहार, मोदी उधर जाके बोल के आया था कि भाई जो बनारस और ईरान का रिश्ता है वो सालों पहले तक जाता है. तो हमने कॉन्शियस एफर्ट डाला है उसको इम्प्रूव करने के लिए, पर जब उस बारी को आई उसको कुछ यूटिलाइज करने के लिए वी जस्ट went away. We Yeah. do not realize that making international relations, having allies is a long term game. You Yeah. cannot just Well said. do 2 years of making tours, making statements and get done by it. Yeah. That is not. And look at this becomes infinitely more complicated by factoring in the high number of Shias who are Indians. So and the American investigator Scott Ritter, who was one of the biggest public critics of the Iraq war in 2003, he was a UN weapons inspector, and he was one of the first people to indicate कि यहाँ पे कोई WMDs नहीं है इराक में. And he was a big critic of the Iraq war later. The military industrial complex and the CIA, they went after him. उसको उस पे झूठ मूठ केसेस लगा दिए, कभी उस पे harassment के केसेस लगा दिए. The lobby really went after him, but he's still thriving and he's still a big voice against these naive wars. तो स्कॉट रिटर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही कि इफ़ यू आर शिया एनीवेयर इन द वर्ल्ड, the attack on the Ayatollah is personal for you. It's like, in a way, it's like decapitating the Pope if you are Catholic. So that's the comparison. अब मैं justify नहीं कर रहा हूँ ईरान को. ईरानियन स्टेट ने भी बहुत क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की है, अपने लोगों को बहुत सप्रेस किया है, बट ये दुनिया भर के शियाज पे क्या इम्पैक्ट करेगा, ईरानियन स्टेट पे क्या रैलीइंग बिहाइंड द फ्लैग होगी, ये अमेरिकन ने बहुत बुरी तरह मिसकैलकुलेट किया. उनको लगा सब सड़कों पे आके एकदम स्टेट को ओवरथ्रो कर देंगे. ये बहुत ही नाइव CIA की और ये थिंकिंग बहुत थी. अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मेरा मानना है जब कोई भी देश युद्ध में होता है तो तब वो यूनाइटेड हो जाता है. बिल्कुल. और स्पेशली जो एंटी यूएसए सेंटिमेंट है पूरे मिडल ईस्ट में और स्पेशली ईरान जैसे देश में, तो भले ही लोग खुमैनी के अगेंस्ट हो, वो लोग साथ में यूएसए की भी अगेंस्ट है. और अगर हाँ. यूएसए आपके देश में किसी को उड़ा रहा है तो यू टेंड टू गेट यूनाइटेड. बिल्कुल. जस्ट सेम वे लाइक इंडिया पाकिस्तान वॉर में आप ऑपोजिशन पार्टी हो या फिर रूलिंग पार्टी हो, आप लोग एक हो ही जाओगे ऑब्वियसली. बिल्कुल. कॉमन एनिमी. तो वो आई थिंक वो लोग उन्होंने रियलाइज नहीं करा एंड रैली बिहाइंड द फ्लैग इफेक्ट हो जाता है. रैली बिहाइंड द फ्लैग. यस. और उसका बहुत बड़ा जोर दिख रहा है. पीपल हैव द करेज. वो ईरान में अभी भी स्ट्रेंथ है. दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग टू फाइट. दे आर सेइंग वी वोंट बैक डाउन, वी वोंट सरेंडर, वी वोंट कम फॉर नेगोशिएशंस. तो उनका ये इम्पैक्ट, जैसे रशिया ने जब अटैक करा था यूक्रेन ने, लोग कहते हैं 1 महीने में यूक्रेन खत्म हो जाएगा, बट उनका जो जज्बा था बट यूक्रेन सर्वाइव्ड. अभी भी चल रहा है वो. और अब तो शायद गल्फ स्टेट्स को कंसल्टिंग दे रहा है कि शाहिद ड्रोन्स को कैसे गिराए. उड़ाते हैं because वो रशिया शायद ड्रोन से उड़ाता था. एग्जैक्टली. तो एक आई थिंक एज वी we are talking about, sorry to cut you off, we are No, talking no, about no. how India has not done well walking the diplomatic tightrope this Yeah. time.
हमें कुछ तो बोलना चाहिए था. आई अंडरस्टैंड कि भाई हमारी रूलिंग पार्टी को कुछ कंसर्न्स हो सकते हैं या फिर वी आर फॉर्मिंग अ प्रो इजराइल पॉलिसी. आई अंडरस्टैंड दैट, बट इवन ड्यूरिंग द यूक्रेन Russia conflict, we said we are in support of the peace. We did not या mention any parties. We could have done a similar thing. हमेशा बोला कि सिसीड करो, वायलेंस खत्म हाँ, करो, we यू could नो. have done the similar thing जो इस बार ही मिसिंग थी. हाँ. until now भी I don't know इन लोगों को क्या हुआ कि भाई हाँ. एलपीजी की शॉर्टेज है इसलिए ये हाँ. लोग बुलानी शुरू और कर दी. शायद हम लोगों ने भी ये देखा कि ईरान हैज़ नॉट बैक डाउन एंड दे हैव प्रूवन टू बी मच मोर रिजिलियंट. दुनिया में हर इंसान जो 2 हफ्ते पहले तक भी रियलाइज़ कर रहा था कि शायद शायद कोई शाह टाइप का रेजीम वापस इस्टेब्लिश हो जाएगा, दे हैव अंडरस्टूड दैट IRGC, the Ayatollahs, all these people who have been preparing for this conflict for decades now, Decades, yes. they have been more resilient than you thought. आज आज तक शायद यूएई में शाही ड्रोन्स गिर रहे हैं अभी अभी भी. भी गिर रहे हैं और तो- भयंकर गिर रहे हैं. आई टॉक टू माय फ्रेंड्स इन यूएई, Yeah. जैसे दिन दिन और न्यू रिपोर्ट्स है प्रॉपर, उनसे बात करने की क्या जरूरत है. वो लोग हाँ. खुद बोलते हैं दिन के 500 आ रहे हैं. हम्म. और एक वो बात अलग है कि एक दो लग रहे हैं या वो भी नहीं लग रहे, पर जो एक देश में इम्पैक्ट पड़ता है वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है बिल्कुल, लोगों को. हाँ. और उससे लोगों का सेंटिमेंट बदलता है उस देश की तरफ. हाँ. और वो सेंटिमेंट बदल रहा है भाई. लोग कह रहे हैं कि उसके रियल एस्टेट प्राइसेस गिर जाएंगे. ठीक है, तो वो सेंटिमेंट यूएई की तरफ थोड़ा खिलाफ तो नहीं, बिल्कुल. दे आर गेटिंग स्केयर्ड. पीपल आर Yeah. स्केयर्ड देयर. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट व्हाट द यूएई गवर्नमेंट डज इज they track your phones. Yeah. They give out statements that you cannot go against the state. You Yeah. cannot tell कि भाई यहाँ पे कुछ गिर गया, यहाँ पे हालत खराब है. You cannot spread anything. You cannot give out any information. तो ये एक चीज़ ये भी दिखाता है कि यूएई गवर्नमेंट भी थोड़ी सी इनसिक्योर हो थोड़ी रही सी है. इनसिक्योर हो रही है कि भाई वी वांट टू सेव आवर इमेज. Yeah. वी कैन नॉट गिव द इमेज आउटसाइड कि भाई हाँ. यूएई किसी मसले में आ सकता है. हाँ. और इसमें जैसे देखो तो मार्केट्स, हमारी बात मार्केट से हुई, इकोनॉमिक्स से हुई, तो मार्केट्स भी बहुत बड़ी हद तक सेंटिमेंट ड्रिवन होते हैं. और सेंटिमेंट्स बदल रहे हैं बहुत ज़्यादा. एंड इफ ईरान इज एबल टू सक्सेसफुली चेंज द सेंटिमेंट अबाउट अदर पार्ट्स ऑफ वेस्ट एशिया एंड इट्स एबल टू कंट्रोल energy supply from Strait of Hormuz and it's still striking parts of UAE, that to me looks like they've not lost. They're not lost. They've not lost anything. They, if anything, they've become stronger in the last few weeks. Yes, of course, and that is the thing. You can never write off Iran. Yeah, absolutely. You can never write that country off. And you have to understand, it is a country which has been, उनके ऊपर sanctions लगाए गए, sanctions हटाए गए ओबामा के अंडर, हाँ. फिर दोबारा ट्रम्प ने लगाए, हम्म. फिर ट्रम्प के बाद कौन था वो, Biden. बाइडेन ने भी कंटिन्यू रखे, ट्रम्प 2.0 में भी कंटिन्यू हुए. हाँ. तो पूरा दुनिया आपके खिलाफ है. हाँ. पर तब भी आप दुनिया की पॉलिटिक्स को अपने Override मुट्ठी में नहीं तो कर पर आप सकते. उसको बहुत एग्रेसिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. बिल्कुल. अच्छा, मुझे लगता है जैसे डेमोक्रेट्स भी दूध के धुले हुए तो नहीं है, बट द सॉर्ट ऑफ जेक सलिवन, एंथनी ब्लिंकन, बराक ओबामा काइंड ऑफ फॉरेन पॉलिसी आर्किटेक्चर वो ये होने नहीं देता. द JCPOA which was signed in 2013 I think. Yeah. 2012 हाँ, उससे सबसे ज़्यादा इसराइलीज गुस्सा हुए थे, बट दैट इंडिकेटेड दैट अमेरिकन्स वर गोइंग अवे फ्रॉम इसराइली प्रेशर इन देयर वेस्ट एशिया पॉलिसी, because for so long American West Asian policy has been done by the Israelis, and Obama, to his credit, pushed back against that. मतलब ओबामा का शायद मैं नंबर 1 फैन ना हूँ, बट एटलीस्ट उसने ईरान के साथ तो जंग नहीं होने दी. एंड ये मुझे लगता है ट्रम्प की इम्प्रूडेंस है, और ये इवेंचुअली अमेरिकन्स पे कभी ना कभी किसी तरीके से बैकफायर करने ही लगा है और करेगा. सो या आई थिंक ट्रम्प की ये प्रॉब्लम है. पता नहीं, ट्रम्प 1.0 में तो उसकी पॉलिसी बहुत वेल डिफाइंड थी, बिकॉज ट्रम्प आया किस बेसिस में. वैसे 2014 में एक राइट विंग वेव पूरे दुनिया में आया था, मोदी आया था, और राइट विंग वेव अभी भी चल रहा है. बहुत देशों बिल्कुल में सही बात है. राइट पॉलिटिक्स चल रही है. पूरी ये बोल्सोनारो और तो जब ट्रम्प आया था तब उसका एक एजेंडा था, मेक अमेरिका. ट्रम्प ऑब्वियसली, हाँ, गो ऑन, ऑफ कोर्स. तो जब ट्रम्प आया था उसने बोला मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. उसमें उसकी एक चीज़ बहुत बड़ी थी, ही विल वॉक आउट ऑफ अलायंसेस व्हिच आर नॉट इन हिज फेवर.
he'll walk out of international organizations जहाँ पे money burn हो रहा है, उसने WHO बुलाना सब छोड़ दिया. वो पेरिस एग्रीमेंट से बाहर आ गया. Paris agreements, he will not fight a war which is not his own. He will save his men. Yeah. अफगानिस्तान से वो बाहर आया, ट्रम्प लेके आया अफगानिस्तान से बाहर यूएसए को. तो ऑल्दो फाइनल पुल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ था, बट वो इनिशिएट ट्रम्प के. जो अग्रीमेंट साइन हुआ था, दोहा अग्रीमेंट था शायद उसका नाम, वो ट्रम्प ने साइन करा था. हाँ, वो खलीलजाद ऑन बिहाफ ऑफ यूएस वाज. वो ट्रम्प की पॉलिटिक्स थी. हाँ. और वो पॉलिटिक्स बाइडेन की वक्त में भी कंटिन्यू हुई, जैसे बोला गया कि भाई वो उसको वापस लेके आए, बाइडेन के फाइनल पुश, अफगानिस्तान केम बैक. But it changed completely in Trump 2.0. They're fighting a war which is not theirs. It's Israel's, it's Saudis. एब्सोल्युटली. So इससे ट्रम्प के जो खुद का कोर मागा वोट बैंक जो बोलते हैं, जो ट्रम्प को सपोर्ट करता है कि भाई यूएसए के अंदर आप जॉब्स बनाओ, जिसका टैरिफ से रिलेट था. टैरिफ वाज पार्ट ऑफ ट्रम्प्स कोर पॉलिसी कि भाई यूएसए के अंदर जॉब. बट ये टैरिफ से बिल्कुल जिसकी पूरी मतलब नाउ हिज ट्रम्प 2.0 वुड नॉट बी डिफाइंड बाय टैरिफ्स और इकोनॉमिक वॉर. It would just be by Iran. Iran. And that to me sounds like a loss for Trump's core voter base. Yes. People like Tucker Carlson, who were big conservatives earlier, are definitely majorly against this war. Many more people, many more good voices in the US. Some of the major critics of this war are also Americans who are watching this and saying that we did not vote for this. We did not vote for this. Yeah. And they were very happy with the tariffs. I mean, Yeah. tariffs से okay, so there's an argument कि tariff से महंगाई बढ़ी, but there's also an argument उससे job creation बढ़ा, जो भी है वो अलग चीज़ है. पर tariffs का support था ट्रम्प को, बिल्कुल. उसके core voter base से. तो वो अब tariffs तो भूल ही गए भाई लोग. बिल्कुल. Especially with the Supreme Court judgment कि भाई tariff were unconstitutional. वो यूएसए में अभी जजमेंट आया था, तो टैरिफ्स तो लोग भूल ही गए. नाउ हिज होल पॉलिसी इज डिफाइंड बाय ईरान एंड ही डज नॉट सीम टू मेक सेंस ऑफ इट. He's very unrelenting to this day. गोइंग एट इट. Yeah. ही डज नॉट अंडरस्टैंड कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है, मेरे को इसको कैसे मैं समझूं. ही इज जस्ट गोइंग एट इट एंड इट मेक्स नो सेंस टू मी बिकॉज उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया. आप इकोनॉमिक्स, सेफ्टी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, Security. सब सिक्योरिटी सब बदल गया है भाई. चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर. Yeah. तो लास्ट सिद्धार्थ थोड़ा थोड़ा इसको क्लोज पे अगर लाएं इस कॉन्वर्सेशन को, तो मैं एक फ्यूचर प्रेडिक्शन लेना चाहता हूँ. व्हेन डू यू थिंक द कॉन्फ्लिक्ट विल कम डाउन? व्हेन डू यू थिंक द फाइटिंग विल रिड्यूस? एंड व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर फॉर एनर्जी एंड ट्रेड अराउंड वेस्ट एशिया? I think as long as Hormuz is closed and this war is going, because Iran is going at it as well. वो डरते नहीं है. Hormuz बंद कर दिया, इस्लामिक लोगों के ऊपर मिसाइल चला रहे हैं. और शियाज में तो स्पेशली एक शहादत का हाँ. एक इम्पल्स भी है, जो कि बहुत आई थिंक मनी ऑफ द यूरोपियंस एंड द अमेरिकंस दे डोंट अंडरस्टैंड देयर कमिटमेंट टू देयर आयतुल्लाह, तो जब तक वो चल रहा है तब तक आई डोंट थिंक देयर विल बी अ स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर, बिकॉज आई थिंक रशिया यूक्रेन का इम्पैक्ट एक महीने तक रहा. फूड मार्केट चेंज हुई, फर्टिलाइजर मार्केट चेंज हुई, थोड़ा क्रूड में चेंज आया, बट इट ऑल सेटल डाउन बिकॉज ऑफ दैट इनविजिबल हैंड. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल्स 1/10 और 10 to 20% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड. होल वर्ल्ड ट्रेड इज व्हिच इज ह्यूज. तो जब तक ईरान ये कॉन्फ्लिक्ट को कंटिन्यू करता है तब तक आई डोंट थिंक कुछ बदलने वाला है, और बदलेगा तो कुछ वर्स ही होगा. जैसे कल खार्ग आइलैंड, जो कि ईरान का सबसे सारा तेल खार्ग आइलैंड से ही जाता है, जिसका बिगेस्ट बायर चाइना है. उस पर अटैक करा यूएसए ने. तो एक और सप्लाई कम हुई, खार्ग आइलैंड में अटैक हुआ, डिमांड बढ़ी, चाइना को तेल कहीं और से लेना पड़ेगा. सप्लाई लेस, डिमांड मोर, तेल और बढ़ेगा, और एक्सचेंज रेट इम्पैक्ट होंगे, और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी. जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही ओमान और कतर से इंडिया फर्टिलाइजर्स लेता है. राइट. ठीक है, तो फर्टिलाइजर डीएपी उधर से आता है, डीएपी में इफेक्ट होगा, यूरिया में इफेक्ट होगा, राइट. हमारे इंडस्ट्रीज में इफेक्ट होगा. Right. इंडस्ट्री में ऑयल गैस अभी तक नहीं आ रहा है, क्योंकि गैस कतर से आता है, उन्होंने बंद कर रखा है. तो अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज इन लाइक कॉपर कॉन्टिन्यूस रॉड प्लांट्स, दे आर ऑल क्लोज्ड. तो तब तक इफेक्ट रहेगा, मेरा मानना है. तो जब तक इट माइट जस्ट गेट वर्स, आई डोंट थिंक इट विल गेट बेटर. Right. As long as And Iran is in it. that's saying something like I hope it yeah. I hope it remains stable, because what's the worst that could happen अब तक. हाँ. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, बिल्कुल. ठीक है, खार्ग आइलैंड इम्पैक्ट हो गया,
तो तो मतलब बहुत वर्स्ट हो भी चुके हैं. बहुत वर्ष हो चुका है, तो ज़्यादा चांसेस है इससे बेटर हो, बट मेरे को ऐसा लगता है अगर इफ दिस कंटिन्यूस तो हाँ. बेटर नहीं होगा. बिल्कुल या fair. तो स्टेबल रहेगा, या तो अगर और कोई बड़ी चीज़ हो जाती है भाई कि वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट वॉर अनाउंस हो गया मिडल ईस्ट में, तो और बढ़ जाएगा. For sure. तो इम्प्रूव होने का एक ही चांस है, ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो. For sure. और खत्म मुझे क्या लगता है, आई डोंट नो, दे स्टिल गोइंग एट इट, दे स्टिल Yeah. मैन पावर. एंड 2-3 हफ्ते मुझे तो कहीं लगता नहीं है गए. कि व्हाट डू यू थिंक, कब तक आई खत्म थिंक होगा? मुझे लगता है कि सी इट्स टाइम टू कीप आवर सीट बेल्ट्स ऑन फॉर श्योर. मैं जितना भी कह लूँ कि मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ या अपने आप को फॉरेन पॉलिसी वॉचर बुला लूँ, मैं भी 2 साल से तो ये पॉडकास्ट ही कर रहा हूँ, वेस्ट एशिया को 2 साल से ऊपर से बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ और बचपन से पढ़ रहा हूँ इन चीज़ों के बारे में. I don't think I have a realistic answer. It's become much harder to predict. Especially now that Trump is so Yeah. unreliable. And I saw a podcast with, people like Mr. Vivek Karju, one of very distinguished names in the foreign service, hosted by Kapil Sibal. It had ex-NSAs of India. It had Brahma Chaleni, the foreign policy expert. तो जब ऐसे दिग्गज भी नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, उन्होंने भी अपने एनालिसिस में कहीं ना कहीं कहा कि दिस इज़ माई असेसमेंट एंड दिस इज़ इट्स स्टिल हार्ड टू प्रिडिक्ट. और बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं भारत की फॉरेन सर्विस से, तलमीज़ अहमद जो बहुत गल्फ़ कंट्रीज़ में एम्बेसडर रहे हैं. मुझे किसी की एनालिसिस में कुछ स्ट्रेट अप एक डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, विच मीन्स हाउ द चर्न इन द वर्ल्ड ऑर्डर हैज़ इंटेंसिफाइड कि हम लोग सब एक तरह के इम्पास में आ गए हैं. ऑल वी कैन डू इज़ कीप आवर सीट बेल्ट्स ऑन एंड होप कि ये अब और एस्केलेट ना होती चली जाए. और क्योंकि हमने ईरान के नेगोशिएशंस 2 बार फेल होने दिए, अमेरिकन और इसराइलीज ने 2 बार नेगोशिएशंस के दौरान अटैक किया, तो व्हाट इज द ईरानियंस इंसेंटिव टू ट्रस्ट नेगोशिएशंस अ थर्ड टाइम? सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट टॉकिंग. That's why they're not talking. And you know, I think sanctions impact them a lot, but they don't care enough about it. Sanctions have always been bypassed. उसमें भी Yeah. UAE का बहुत बड़ा हाथ है. उनकी इकोनॉमी सैंक्शन बाईपास से चल रही है. UAE में पूरा हवाला नेटवर्क चलता है through Right. Iran. So they do not care about sanctions. I don't Yeah. think as much as they used to in the past. Now they हाँ. just take care about their honor. Yeah. जब तक उनको लगता नहीं है कि भाई हम लोग इससे इज्जत गेन करके नहीं जाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता वो लोग हाँ. इसको they have no other reason. हाँ. तो मतलब आई थिंक हम Unless वो अपने ट्रूप्स ऑन ग्राउंड भेजे, जो मुझे अनलाइकली लग रहा है. बिल्कुल, नहीं करेगा हाँ. वो. आई थिंक इस पॉडकास्ट में मैं किसी भी चीज़ पे एक्सपर्ट होने का दावा नहीं करता हूँ, बट आई विल से दैट सिद्धार्थ एंड आई आर बोथ फेयरली लिटरेट इन दीज इश्यूज़. हम लोग वेस्ट एशिया को बहुत पहले से देख रहे हैं, ट्रेड को सिद्धार्थ बहुत क्लोजली फॉलो करता है. आई थिंक दैट देर इज़ नो क्लियर एंड टू दिस दैट आई कैन सी. Same. No clear And- end. I don't know. It's very मतलब अनसर्टेन. पता ही नहीं क्या हो. कल खत्म हो जाए हमें नहीं पता. हाँ. कल कुछ बड़ी चीज हो जाए हमें नहीं पता. और स्पेशली बिकॉज ट्रम्प इज समबडी जिनकी फॉरेन पॉलिसी इज ए पर्सनल फंक्शन ऑफ हिज थिंकिंग. Office thinking, yes. तो वो कल जो उठ मन के में बोल आता दे है. कि द पीपल ऑफ ईरान आर ग्रेट एंड आई एम पुटिंग दिस गाय एज अ लीडर, या कर कल भी सकता है, कर कल भी- नेगोशिएशन हो गई और बोले कि वी हैव मेड अ डील विद द आयतुल्लाहs. तो ये सब इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है. आई स्टिल होप एज अ पीस, एज अ डिल्यूजनल नाइव hope I hope for peace as a delusional naive person in today's day. तो मेरा बस हमेशा ये होप रहती है कि कहीं ना कहीं एक डील रीच हो जाए और स्ट्राइक्स कम हो जाए थोड़ी, ताकि वेस्ट एशिया में ट्रेड रिज्यूम हो, किलिंग्स थोड़ी कम हो जाए. वेस्ट एशिया में और मिडल ईस्ट में स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और बिल्कुल. वो आनी भी चाहिए. आई डोंट थिंक, मतलब ऑफ कोर्स दे हैव हैड हिस्टोरिकली आप बोल सकते हो कि टेररिज्म रहा है, बट लेट्स बी रैशनल अबाउट इट. यू कैन नॉट एसोसिएट विद रिलीजन. बिल्कुल, हाँ. तो आप लोग, आई ऑल्सो वेस्ट एशिया में अगर स्टेबिलिटी आती है तो देश का ही, दुनिया का ही भला होगा. बिल्कुल सही बात. ट्रेड बढ़ेगा, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है. ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा. और हम लोग सुएज कनाल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, इन सारी क्रिटिकल ट्रेड रूट्स पे वेस्ट एशिया के ही थ्रू तो रीच करते हैं. 2023 में जब G20 में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पास हुई, तो उसमें एक प्रपोजल तो था आईमैक का, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर. और मेरे को खत्म हो गया. मेरे को और नहीं वो लगता होगा भी कभी. आईमैक तो फॉर अ वेरी क्रूड एंड अनफॉर्चुनेट एनालिसिस, आईमैक वाज डेड ऑन अराइवल, क्योंकि वो कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाया. That's the problem of Indian foreign policy. They work so hard. Like मैं ईरान की बात कर रहा था, इतनी मेहनत करते हैं बड़ी अनाउंसमेंट करने के लिए, हाँ. बट जब मौके की बात आती है, आई डोंट नो वेयर दे Yeah. फॉल अपार्ट.
इसमें the next time we talk, Siddharth, perhaps we can talk about more grave reforms in India's foreign policy architecture. So the next time we have a conversation, we will keep it around that. But Of course, I would love to be here the yeah. next time. It was. for now, I think it's time to still keep our seat belts on क्योंकि West Asia में जो situation है, it's maybe worsening, but it's clearly not getting better. I hope it does. Yeah. And the worst, it's very bad. I hope it gets better. And there are no clear winners in this. We didn't win anything. The Iranians also have lost a lot. The Americans have made a big error and they are being called out for it. So we are all strategic losers. It's a lose, lose, lose on every matrix that you make. Except maybe Israel, they would Yeah. think they won. But Israel में भी सब नेतन्याहू बोलेगा कि मैं हाँ, जीता हाँ. हूँ. पता नहीं उनकी भी जनता क्या चाहती है. डोमेस्टिकली भी ऑपोजिशन आ रहा है मुझे लगता है. और कनेसेट में भी काफ़ी लोग हैं जो वॉर के खिलाफ रहते हैं. yitzhak रबीन जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इतनी मेहनत की थी फॉर अ 2 स्टेट सोल्यूशन एंड ही इज़ हैविली हाईली वेल रिगार्डेड इवन इन द अरब वर्ल्ड. तो ऐसा नहीं है कि इसराइल में ईवल ही लोग हैं, बट जो पीस के एडवोकेट्स हैं उनको पॉलिसी में घुसने नहीं दिया जा रहा है. कुछ ना कुछ करके कोई भी पीसफुल सोल्यूशन वाले को या तो असैसिनेट कर दिया जाता है या रास्ते से हटा दिया जाता है. एंड असली में फ़ायदा सिर्फ US डॉलर का, पेट्रो डॉलर्स का और लॉकहीड मार्टिन का होता है. मार्टिन बस असली में फायदा इन्हीं का होता है और हाँ. किसी का नहीं होता है. तो You know, it's kind of just one thing to add. It's एक लेविथियन करके बुक है. राइट. उसमें बोलता है ह्यूमन नेचर जो है दैट इज ब्रूटिश, इविल, या एंड दैट इज व्हाट वुड दैट इज व्हाई वी नीड स्टेट, बिकॉज ताकि ह्यूमन नेचर को आप कंट्रोल कर पाओ, आप लोगों को राइट्स दे पाओ. और इंटरनेशनल ऑर्डर में आज की डेट में हम वही देख रहे हैं, ह्यूमन को आप स्टेट से एसोसिएट कर लो. भाई इंटरनेशनल ऑर्डर है नहीं, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो किसी के ऊपर कुछ इम्पोज कर पाए. For और sure. लेविथियन का हम प्राइम एग्जांपल देख रहे हैं कि भाई क्या जैसे कुछ भी हो सकता है, लोगों को दैट्स बस ट्रू. दे जस्ट इविल एंड ब्रूटिश. For sure. Anyway, I think on that note, इस conversation को conclude किया जा सकता है. Again, like I said in conclusion, we still don't know how it will de-escalate, but we are ending with a prayer for de-escalation, a prayer for resuming of trades, and a normal world order and a normal foreign policy architecture that we are used to. Any final thoughts, Siddharth? The same, I just hope it gets better because it's even we are not affected by the war except in the economic terms. कोई direct rule नहीं है, हम बहुत दूर है. पर तब भी रोज न्यूज़ में देख के अच्छा नहीं लगता है कि यार कोई मर रहा है, हाँ. हो रहा है. तो I just hope it gets better. That's all we can हाँ, hope for. मतलब मैं जैसे इतना एंटी अमेरिकन मिलिट्री इंटरवेंशनिज्म बोल रहा हूँ, बट 20-20 साल के अमेरिकन सोल्जर्स की भी जाने गई हैं, उनकी भी नॉर्मल फैमिलीज रही हैं. यू नो, पीपल हैव लॉस्ट लाइव्स इन द गल्फ अरब वर्ल्ड. So many Iranians have passed away. I don't think most of the world will get behind this for too long. Yes, that's the final thought. I just hope it gets better soon. Yeah. All right. Thank you for joining us, Siddharth. We will have a very soon another conversation about this, and we will keep talking. And thank you for joining us, viewers. Please like, share, subscribe, and share our thoughts and our message around to your circles. Thank you.